Hello dear students, welcome to the class today. So children, we are carrying on with the second chapter. Geography we needed to do 2 chapters together. So after completing the first chapter, now we are in our process of completing the second chapter. Yes, a lot of points we have discussed. बार मैं ये बात कह रही हूँ so that it is very clear to you that all the issues, all the things that are mentioned in your chapter, all the points that are mentioned in your book in this chapter is very important from GK point of view. बहुत बार मैं ये बोल चुकी हूँ, but continuously I'm saying because I'm talking about it out of my experience. Yes, the competitive examinations when I was appearing for, at that time I always used to think कि थोड़ा सा और इंडिया का जानकारी ले लेते, थोड़ा सा और इंडिया के बारे में पढ़ लेते तो that would have been great. Okay. So that is why I am reiterating, बार एक ही बात मैं बोल रही हूँ. If you are thorough with this chapter, if you are thorough with the points that are given in the chapter, your points, your things would be very easy. काफी आसान हो जाएगा आपको चीजों को समझने के लिए. Got it, children? So अभी तक जो हमने पढ़ा, whatever we have done till now, it was first we have discussed about the Himalayas. Himalayas में 3 parts. I'm just revising it, children. I'm just revising it so that before starting the new topic, the old things must be clear to you. So the greater Himalayas, the lesser Himalayas, and the Shivalik, then the Dunes, then the Purvanchal, सारी चीजें हमने हिमालयास के बारे में पढ़ा, हिमालयास के बारे में समझी. The other thing, the next that we had started in the last video, the part that is very important part of India is the northern plains. Got it, children? हम नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बात कर रहे थे, where we have understood कि the river system. With the help of a diagram also I tried to explain you all the rivers that are flowing in the upper area and in the upper level of the mountains. By the time they come down, जब तक ये rivers नीचे आते हैं तब तक क्या होता है, their velocity is very low. अब वो अपने साथ, while the rivers are flowing, rivers are bringing lot of small stone pieces, silt, soil, sand, हर तरह की चीज नदियां बह रही हैं, नदियों के साथ चल रहे हैं, नदियां बह रही हैं, नदियों के साथ बह रहे हैं. And when they come to the ground, they can't flow, क्योंकि अब बहाव रुक गया. पहले ऊपर थे, ऊपर से नीचे आते आते अब तो प्लेन एरिया में आ गए. तो it is depositing all its material that it has been bringing on its long route. अपने लंबे सफर में जो मिट्टी, जो बालू ये अपने साथ लेके आए हैं, ये फिर सेटल कर देते, ये उसको फिर रोक देते. तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, 3 मेजर रिवर से ये नॉर्दर्न प्लेन बना है. इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. पूरा नॉर्दर्न प्लेन इज डेडिकेटेड एंड रिलेटेड टू दीज 3 रिवर्स. ये 3 नदियां नहीं होती तो शायद नॉर्दर्न प्लेन्स भी नहीं होता. यस चिल्ड्रन, बिलीव मी, एल्यूवियम जो बेस्ट है, मिलियन ऑफ ईयर्स से ये नदियां बह रही हैं, लाखों सालों से. आई डिस्कस्ड इट यस्टरडे ऑल्सो. नाउ दिस एरिया इज एग्रीकल्चरली वेरी प्रोडक्टिव. काफी अच्छी खेती होती है यहाँ पे. एंड नॉर्दर्न प्लेन इज इनटू 3 सेक्शंस. वेस्टर्न पार्ट में इट इज द पंजाब प्लेन्स,
तो कल तक जो हम लोगों ने पढ़ा था, yesterday what we had discussed is that in the upper portion, got it? The rivers that are flowing, it settles down in the lower portion. तो यहां से क्या होता है, लॉट ऑफ रिवर्स कम आउट. यहाँ पे छोटी छोटी नदियां ना, क्या होता है कि मट्टी कहीं कहीं डिपॉजिट हो जाती है. तो मट्टी के डिपॉजिट होने की वजह से क्या होता है, दैट द रिवर हैज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू मेनी पार्ट्स, सो इट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटरीज. River which is flowing from the top area and it has come to the bottom, it has settled there. Now the water of this river is spreading into the other parts. बाकी की जगह पे ये सारी जो नदियां हैं, इसके छोटे छोटे कोर्सेस निकल जाते हैं. स्मॉल चैनल्स आर कमिंग आउट बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट. सिल्ट मीन्स जो मट्टी अपने साथ ये लेके आ रही है ये रिवर्स वहां पे. अब नाउ दीज रिवर्स, नॉर्दर्न प्लेन, ये जो रिवर्स है एंड स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटरीज दैट आर कमिंग आउट, इट हैज फॉर्म द होल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन. सो द नॉर्दर्न प्लेन इज डिवाइडेड इनटू, ये पूरा जो नॉर्दर्न प्लेन है 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है. गॉट इट? वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज पंजाब प्लेन्स. वेस्ट में जो है, ओके, वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स इज पंजाब प्लेन. पंजाब है ना, नदियां उधर भी बह रही है. उधर कौन सी नदी बह रही है? यस, इंडस. वहां पे क्या है, इंडस रिवर इज फ्लोइंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन. सो इट इज फॉर्म्ड बाय रिवर इंडस. इंडस भी काफी ऊंचे से ही बहते हुए नीचे आ रहे हैं. सो देयर आर मेनी स्मॉल रिवर्स दैट आर फाउंड एट द लोअर एरिया. सो रिवर इंडस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूटरीज. गॉट इट? छोटी छोटी चैनल्स जो आ रहे हैं. अब लार्जर पार्ट, अभी इसमें क्या हो गया, इट इज अ वेरी सॉरी स्टेट दैट लार्ज पार्ट ऑफ दिस प्लेन हैज गॉन टू पाकिस्तान. बंटवारे में यही तो नुकसान हुआ हमारा ना. लार्ज पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान. पाकिस्तान चला गया ना वो सारा. एंड इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. देखो, ट्रिब्यूटरीज वो हैं जो छोटी नदियां आके बड़ी नदी में मिलती हैं. ठीक है, ट्रिब्यूटरीज आर व्हेन इट इज फ्लोइंग हियर, तो सम रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम हियर, इट इज आल्सो ज्वाइनिंग हियर. सम रिवर इज कमिंग एंड ज्वाइनिंग द मेन रिवर. दिस इज कॉल्ड एज ट्रिब्यूटरी. और जब जाके बट जाते हैं तो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज. सो इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रावी, व्यास एंड सतलज, दे ऑल आर ओरिजिनेटिंग इन हिमालय. तो इसको इसलिए भी कहते हैं, दिस प्लेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज दोआब. ओके, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस झेलम, चेनाब, व्यास, रावी. ठीक है, रवि भी कहते हैं उसको.
ठीक है, एंड द सतलज ओरिजिनेट इन द हिमालयस। ओरिजिनेट इन हिमालयस। ये सारी नदियां कहां से निकल के आ रही हैं? हिमालय से निकल के आ रही हैं। ओके, एंड कितनी नदियां हैं? देयर आर 5 रिवर्स, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी एंड सतलज। 5 पंज। ठीक है, पंजाब का नाम ही एक्चुअली इस पे पड़ा है। द नेम ऑफ पंजाब इज गिवन ऑन दिस नेम ओनली, पंजाब। और यहां पे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दोआब रीजन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज दोआब। ओके, दोआब, 2 तरीके का पानी, 2 तरीके की नदियां, गॉट इट, दोआब रीजन। अब ये तो हो गया पंजाब की बात। दिस वॉज ऑल अबाउट द वेस्ट। ठीक है, वेस्ट प्लेन, वेस्ट में भी तो प्लेन रीजन इज देयर ना। सो वेस्टर्न रीजन में हमको पंजाब मिला और पंजाब की नदियां मिली। वी गॉट पंजाब एंड द रिवर्स इन पंजाब। तो पंजाब को मिला के पंजाब बन गया। नाउ अब आगे आते हैं। नाउ वी कम फर्दर। गंगा के पास एक तो इंडस उधर चला गया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सिंधु नदी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंधु नदी। एंड मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा, रिमेंबर 6th क्लास में पढ़ा होगा आपने। Yes, Harappa, Mohenjo-daro, these have all been established in this area because of the Great River. इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट? वी कॉल इट एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो वहीं पंजाब के आसपास इट डेवलप्ड, गॉट इट। अब आते हैं गंगा प्लेन। गंगा प्लेन जो है इट इज एक्सटेंडिंग बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर्स। गंगा प्लेन इज एक्सटेंडिंग बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर्स। घग्गर और तीस्ता नदी है, उसके बीच में ये है। अब यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स? लॉट ऑफ, गंगा इज अ बिग रिवर, सो मेनी स्टेट्स आर फॉलोइंग इन बिटवीन। इसके बीच में बहुत सारे स्टेट्स हैं। सो इट हैज स्प्रेड बिटवीन, इट इज स्प्रेड इन द स्टेट्स ऑफ, एक किनारे से शुरू करते हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम वन पार्ट, नॉर्थ इंडिया, स्टेट्स ऑफ हरियाणा, दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, got it? All these states that are there are forming the गंगा प्लेन्स। गंगा नदी से ही रिलेटेड है। ओके, बिहार एंड पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। बिहार, partly Jharkhand and West Bengal. Remember the name of states. जब states का नाम आता है ना, तो what happens is कि when we are talking about states, तो MCQs can come. आपको कुछ states का नाम अगर दिया हुआ है, name of some states is given there, and it has been asked कि these states are there. Suppose they have said Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Bihar. Ganga river is flowing in which states? Which state? तो उसमें देखो, बिहार हम इसलिए नहीं दे सकते बिकॉज दे आर सेइंग पार्टली यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड। थोड़ा बहुत जो है बिहार का जो है वो नदी है वो झारखंड में भी चला गया है।
and Jharkhand and West Bengal to its east. Particularly in the Assam lies the Brahmaputra plain. Brahmaputra plain जो है, it is lying in Assam. Particularly in Assam lies the Brahmaputra plain. Got it? अब गंगा देख लिया हमने, ब्रह्मपुत्र देख लिया. नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है? इट इज फ्लैट. सबसे पहले तो लैंड फ्लैट है. आपको यू विल बी हार्डली गेटिंग एनी, कोई नदी वदी तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी. सो द वास्ट प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन्स आर फ्लैट लैंड विथ नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ. हर जगह प्लेन लैंड है. ओके, northern plains are flat land with no relief. कोई relief features नहीं है. Relief features means पहाड़, वैली, गड्ढा. I mean these kind गड्ढे तो मिलेंगे. I'm not saying of that, but mountainous features are missing in this area. It is all flat, it is all plain. ठीक है. वास्ट प्लेन्स में काफी सारे रिलीफ फीचर्स हैं, लेकिन रिलीफ फीचर्स में भी वेरिएशंस है. ओके, देयर आर सम रिलीफ फीचर्स बट विथ लॉट ऑफ वेरिएशन. इसमें बहुत सारे बदलाव हैं. What? When वही बात है ना कि हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते फ्लैट लैंड इज देयर, प्लेन लैंड इज देयर, लेकिन कहीं तो थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होगा. तो ये कहां पे है? द रिलीफ फीचर्स आर देयर. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स. According to relief features, it is divided in 4 regions. 4 तरफ से बटे हुए हैं. Got it? 4 regions में when it is divided, 4 regions में when it is spread, the rivers after, सबसे पहले तो माउंटेन से नीचे आए. ठीक है, these rivers are coming down from the mountains. So after descending from mountains, they deposit their pebbles in a narrow belt of 8 to 16 kilometers. सबसे पहले तो पत्थर रुक जाएंगे ना. पत्थरों को तो बहने के लिए, पत्थरों को तो नदी के साथ जाने के लिए हाइट चाहिए ही चाहिए. तो the first place where the rivers are settling its material, that area is 8 to 16 kilometers. The rivers, after descending from mountains, पहाड़ों से आ रहे हैं rivers, ठीक है, settles its pebbles. छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज पेबल्स. ये पत्थर एक जगह पे ये सेटल करते हैं इन अ नैरो बेल्ट ऑफ 8 to 16 किलोमीटर्स. गंगा नदी के पास हमको खाली पत्थर मिलेंगे. ठीक है, 8 to 16 किलोमीटर्स. ओके, छोटा सा एरिया है. इट्स 8 to 16 किलोमीटर. इज नॉट वेरी वाइड, नॉट वेरी बिग, बट इट इज settling and it is lying parallel to the slope of Shivalik. Remember the lowest range, जहां से कि गंगा का बहाव रुकने लगता है, कम होने लगता है. सबसे पहले गंगा, पता है प्लेन रीजन में सबसे पहले गंगा कहाँ आती है? इन द प्लेन रीजन. This I am talking from the religious point of view. First place in the plain where Ganga is
गंगा अवतरित होती है, वेयर द गंगा इज कमिंग इज हरिद्वार। हरिद्वार दैट इज द प्लेस, वो दैट इज कॉल्ड एज द गॉड्स गेट, हरि का द्वार, जहां से कि गंगा इज एंटरिंग द प्लेन एरिया। ठीक है, शी गंगा इज वर्शिप, ऐसे नहीं गंगा को वर्शिप करते ना, बिकॉज ऑफ गंगा द ह्यूमन लाइफ इज गोइंग ऑन, द ह्यूमैनिटी इज गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ रिवर गंगा। 8 to 16 किलोमीटर जो एरिया है, इट इज लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ शिवालिक, सो इट इज लाइंग पैरेलल to the slopes of Shivalik. Shivalik ranges are there. देहरादून के पास, yes, दून्स हैं, और देहरादून के पास, देहरादून से कुछ ही दूर पे यू हैव द हरिद्वार, वहां पे आगे। एंड दिस रीजन इज नोन एज भब्बर। ये जो 8-16 किलोमीटर्स है ना, इट इज भब्बर। ओके, जितना भी स्ट्रीम्स हैं, जितनी भी छोटी छोटी नदियां हैं ना, इस पत्थर में जाके गायब हो जाती हैं। 8 to 16 किलोमीटर तक सिर्फ पत्थर है ना, तो वो नदियां जो हैं इसमें जाके, पत्थरों के बीच में से कैसे बहेंगी नदियां? नदियों को भी तो बहने के लिए ग्राउंड चाहिए ना, पथरीली जमीन पे नदी बहना इज वेरी डिफिकल्ट। सो स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भब्बर बेल्ट। All streams disappear in Bhabbar belt. Tributaries, छोटी छोटी नदियां जो गंगा के बाद आके, गंगा के साथ आके जो डिवाइड हो गए हैं, वो नदियां जो छोटी छोटी बहुत सारी नदियां आई हैं एंड विच हैज डिवाइडेड। अब इसके साउथ में क्या है? एक जगह पे तो पूरे हमको कंकड़ पत्थर मिलेंगे, 8 to 16 किलोमीटर तक खाली पत्थर मिलेंगे। आप ये समझ लेना कि इट हैज बीन ऑल ब्रॉट बाय गंगा। गंगा ये सारे पत्थरों को अपने साथ लेके आई है। साउथ में क्या होता है? द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री-इमर्ज एंड क्रिएट ए वेट एंड स्वाम्पी मार्शी रीजन नोन एज तेराई। वेरी टेक्निकल इट इज, प्लीज अंडरस्टैंड। ये बहुत ही टेक्निकल है, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। यहां पे आके सारी नदियां गायब हो गई। ये जो रिवर्स हैं, ये दीज साउथ ऑफ दिस बेल्ट, इसके साउथ में क्या होता है? साउथ ऑफ दिस बेल्ट emerges the swampy area. ठीक है, द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स रीमर्ज, द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स रीमर्ज, वापस से आते हैं ऊपर। ठीक है, आफ्टर रीमर्जिंग दे क्रिएट अ वेट स्वाम्पी, वो जैसे वो बहुत छिलछिला वाला होता है। रीमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वाम्पी, काई वाला मतलब जो एरिया होता है ना, जिसमें पानी के ऊपर में जिस तरह का जो सेडिमेंट्स होते हैं, पानी के ऊपर जो जम जाता है, स्वाम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तराई। स्वाम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तराई। ये तराई इलाका है जहां पे कि ज्यादातर ह्यूमन लाइफ इज सेटल्ड। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ वी विल बी फाइंडिंग इन दिस तराई एरिया। थिक फॉरेस्ट एरिया होता है इसमें, फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। तराई रीजन इज वेरी ब्यूटिफुल, बिलीव मी चिल्ड्रन, तराई रीजन इज ब्यूटिफुल। फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है बिकॉज दिस एरिया, दिस लैंड इज वेरी एग्रीकल्चरली वेरी फर्टाइल। गंगा का पानी है, गंगा की मिट्टी से ही, पानी से ही ये सारा एरिया बना है ना। एंड माइग्रेंट्स आर सेटलिंग फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन।
ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क इसी जगह पे है. इन दिस प्लेस वी हैव द दुधवा नेशनल पार्क. अब ये जो फॉरेस्ट एरिया है, दिस इज अ होम फॉर वाइल्ड लाइफ. गॉट इट. ये भब्बर एरिया है. भब्बर एरिया में हमको ये सारी चीजें मिल रही हैं. हाँ, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे. 2-3 चीजें आई शो इट टू यू फ्रॉम द बुक इटसेल्फ. चिल्ड्रन, कम लेट्स सी. So children, we discussed about the northern plains. Last class में हमने start किया था. There we had started the video and we have ended at the northern plains. Here one picture is given for northern plains. Plain है ना? There won't be any पहाड़ वहाड़ तो कोई आसपास नज़र आएगा नहीं. So this is a very fertile plain area. Lot of agricultural activities happen in this region. Got it? Rivers are coming from the mountains and they deposit these. ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मिट्टी देख रहे हैं, हिंदी में ना it is called as, पहले मुझे समझ में नहीं आती थी, but once twice I went through the हिंदी book, तो उसमें कहते हैं जलोढ़ मिट्टी. जलोढ़ which is filled of water. ऐसी मिट्टी जिसमें लॉट ऑफ वाटर कंटेंट इज देयर, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज जलोढ़ मिट्टी. गॉट इट. सो रिवर्स आर कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स, दे डिपॉजिट इट. कल हमने मजौली के बारे में पढ़ा था. वी हैव रेड अबाउट मजौली एंड टुडे व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज, चिल्ड्रन, वी हैव डिस्कस्ड दैट नॉर्दर्न प्लेन्स में काफ़ी बड़ा है ना, एक्चुअली बिग, छोटा मोटा तो है नहीं. The big area that is there, the plain area that is there, it is divided into 3 sections. Western part में there is Punjab. West में क्या है? Punjab plains are there. Okay. जहाँ पे Indus River is there and its tributaries are there. उसकी branches हैं Indus River की. इसके बाद काफ़ी बड़ा एरिया जो है इसमें का, it is lying in पाकिस्तान. पाकिस्तान में a big part is there. Got it? इसके बाद इंडस में क्या होता है ना, पंजाब में these rivers are draining the land. बहुत फर्टाइल एरिया है ये. आप देखो कितनी अच्छी वहाँ पे मैक्सिमम पीपल आर एंगेज्ड इनटू एग्रीकल्चर. ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस एग्रीकल्चरल प्रोसेस, पीपल इन पंजाब आर रियली रिच. बहुत सारा मनी वो स्पेंड करते हैं इन all these people who are there in Punjab. They spend lot of money in agriculture. And you know, agriculture is technologically very advanced in Punjab. पंजाब में वो काफ़ी अच्छे से चल रहा है. इंडस है, उसकी जो ब्रांचेस हैं, इट्स ट्रिब्यूटरीज आर देयर. झेलम इज़ देयर, चेनाब इज़ देयर, रावी इज़ देयर, ब्यास, ये सब पता है. रावी, ब्यास, सतलज, ये उनके ना गॉड्स का भी नाम है. ब्यास तो व्यास नदी है. व्यास ऋषि मुनि के नाम पे व्यास नदी का नाम पड़ा था. एंड दिस रीजन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज दोआब. अब दोआब का मतलब देखो, दोआब मीन्स 2 वर्ड से बना है. दो, 2, एंड आब मीन्स वाटर. सिमिलरली पंजाब इज़ देयर, जिसमें कि 2 वर्ड से पंज है एंड आब है. तो 2 नदियों के साथ जो बना है आब, एंड 5 नदियों को मिला के जो रीजन बना है, दैट इज़ पंजाब. गॉट इट. इसके बाद गंगा प्लेन्स कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं? इट इज़ एक्सटेंडिंग खक्कर एंड तीस्ता रिवर. खक्कर से तीस्ता रिवर तक इट इज़ गोइंग. एंड कौन कौन से स्टेट्स में है ये हम लोगों ने आज किया था. रिमेंबर द स्टेट्स. दिस इज़ जीके पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट, दैट गंगा रिवर इज़ ड्रेनिंग विच स्टेट्स. एंड आसाम में वी हैव द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स. अब इसमें वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, एक चीज़ जो आपको इसमें ज़रूर से करनी है चिल्ड्रन, दैट इज़ विच एरिया इज़ नोन एज भाबर. भाबर क्या है और क्यों है? तो भाबर इज़ दैट रीजन जहाँ पे कि गंगा ला के सारे अपने पेबल्स, पत्थर जितने हैं ना, वो सारे वहाँ पे सेटल हो जाते हैं.
तो ऑल द वाटर दैट इज कमिंग विद गंगा इट डिसअपियर्स इन दैट, सारे जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं उसमें द वाटर, द रिवर वाटर सबमर्जेस, एंड वो नीचे ही नीचे फ्लो होते हुए कुछ देर के बाद इट अगेन कम्स आउट। जब पत्थर खत्म है वाटर ऊपर कैसे आएगा? तो ये जो वाटर देन इट कम्स टू द लैंड एरिया, दिस एरिया इज कॉल्ड एज द तेराई रीजन। प्लीज अंडरस्टैंड, थिक फॉरेस्ट आर देयर, फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, काफ़ी जंगली जानवर मिलेंगे इस एरिया में। एंड फॉरेस्ट जो है उसको क्लियर करके वहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड बना दिया गया। तो पाकिस्तान से माइग्रेंट्स आते हैं पार्टीशन के बाद, वहाँ पे आके दे सेटल्ड। अब इसी रीजन में वी फाइंड द दुधवा नेशनल पार्क। ये देखना और देख के मुझे बताना बाद में, ओके चिल्ड्रन? हाँ, आगे का वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू।